Good morning, everyone. I welcome you all to Major H.S. Kalsi's Banloi Academy. This is your GS mentor, Asmita Singh, and today we'll be covering some major current affairs from July to October 2025. So let's start the class. So the very first information is Gujarat has recorded the highest number of rooftop solar installations under PM Surya Ghar Yojana. So whenever such question comes in your examination, the very first information that you need to keep in your mind is that when the Yojana was launched. So it was launched in 13th February 2024. All right, so what is the objective of these rooftop solar installations? See, they reduce the dependency on the fossil fuels, right? So we are basically generating renewable source of energy using this solar energy. See, Gujarat has installed more than 3.36 lakh solar panels, and after Gujarat, on second position we have Maharashtra, and on the third we have Uttar Pradesh. All right. As of July 14, 15.45 lakh all over India, we have these rooftop solar installations. By July 2025, Gujarat had installed around 1.49 megawatts. So if someone asks you, 1 megawatts is equal to how much kilowatts? It's 1000 kilowatts. So this much energy we are generating, all right? Out of 15.45 lakh, Gujarat itself is having 3.36 lakh installation. So it's a milestone in itself. So this capacity under this scheme makes Gujarat the state having the highest number of rooftops installation. So this data is very important. So the next information is regarding a wild cat which is known as Karakal. So this Karakal is basically spotted in Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary. So first information that needs to be extracted is about the location of the Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary. It is in Madhya Pradesh, all right. What about this cat? It is basically a native to the continent Africa, the Middle East, Central Asia, and arid. So this arid area is very dry, all right. In Pakistan and in some parts of northwest India also, we basically find this Karakal cat. Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary, as I told you, is located in MP. Apart from this fact, we also need to keep one thing in mind, that in MP, there are maximum national parks, all right, maximum national parks. And when it comes to the union territory, which union territory is having the maximum number of national parks? It is none other than Andaman and Nicobar, all right. So Andaman and Nicobar in terms of union territories having the maximum number of national parks, and when it comes to the state, this Madhya Pradesh state is having the maximum number of national parks. But this data basically turns, ये डेटा चेंज हो जाता है जब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की. तो अभी भी सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर किसी स्टेट में है तो वो एमपी है, लेकिन उसको सरपास करता है कौन? अंडमान एंड निकोबार. मैंने ये डेटा आपके लिए यहाँ पे मेंशन करा है. महाराष्ट्र में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? 46. और अंडमान एंड निकोबार में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? 97. सो यू कैन क्लियरली सी कि अंडमान एंड निकोबार में ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. ठीक है, अगर इस डेटा की बात करें तो 9 नेशनल पार्क्स हैं अंडमान एंड निकोबार के पास, और यहाँ पे मध्य प्रदेश के पास 11 नेशनल पार्क्स हैं. लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा स्टेट में, तो बिकॉज अंडमान एंड निकोबार इज अ यूनियन टेरिटरी, राइट, और इस तरीके के क्वेश्चन जीके में बहुत पूछे जाते हैं. तो अगर कोई ऐसा स्टेट पूछे जिसमें सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो वो मध्य प्रदेश ही रहेगा, सॉरी महाराष्ट्र ही रहेगा. लेकिन जब बात करें हम किसी यूनियन टेरिटरी की, तो वो क्या हो जाएगा? अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा. ऑल राइट, सो प्लीज कीप दीज फैक्ट्स ऑन माइंड. और कैरकल कहाँ पे पाया गया? मध्य प्रदेश की गांधी सागर वाइल्ड लाइफ
सेंचुरी में. ऑल राइट. सी, next information is related to the NISAR mission, which is a joint Earth observing satellite mission that is between ISRO and NASA. See, this is very important for your exams. Current affair का एक सेक्शन होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. अभी जो आपने दो ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करे थे वो एनवायरमेंट पे रिलेटेड करंट अफेयर्स थे, एंड उनकी भी वेटेज बहुत ज्यादा है. ठीक है, बट इट इज रिलेटेड टू स्पेस, इट इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. निसार का सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं. इट्स नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार. सी, दिस इज द अब्रीविएशन. एंड ये किसके बीच का वेंचर है? नासा का, जो कि यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है, वी वेरी वेल नो, और इसरो जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है. All right, they are co-developing and launching an EOS. So examiner आपसे पूछ सकता है what an EOS is. EOS stands for Earth Observation Satellite. जैसा कि नाम से ही बहुत क्लियर है, ये सैटेलाइट अर्थ को क्लोजली ऑब्जर्व करेगी, अर्थ का जितना भी डेटा है उसको कैप्चर करेगी. ऑल राइट. सो ये फर्स्ट रडार इमेजिंग सैटेलाइट है. क्यों ये करंट अफेयर इतना इंपॉर्टेंट है? ऐसा तो नहीं है कि इससे पहले कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं करी गई है. बहुत अलग अलग कंट्रीज ने बहुत मल्टीपल सैटेलाइट्स, इनफैक्ट इंडिया ने भी बहुत सी सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं, लेकिन ये पहली रडार इमेजिंग बेस्ड सैटेलाइट होगी. ठीक है, वो भी जॉइंट वेंचर है नासा और इसरो का. इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डुअल बेस्ड होगी, मतलब डुअल फ्रीक्वेंसी पे ये काम करेगी. इट विल बी यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग. देखिए इसके पर्पस क्या क्या होंगे. ये रिमोट सेंसिंग में यूज होगी, ये ऑब्जर्व करेगी, अंडरस्टैंड करेगी अर्थ के पूरे बिहेवियर को, उसके प्रोसेसेस को, उसके कैरेक्टर्स को. ऑल राइट. सो दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट. इसकी लॉन्च डेट क्या थी, कब लॉन्च हुआ ये? जुलाई 30, 2025. Now, see, this is something very important. This particular information makes this current affairs more important. How? ये, as you know, is a joint venture, right? It's a joint venture. लेकिन joint venture होने के बावजूद भी हमने जो लॉन्चिंग स्टेशन चूज किया वो यूएसए का लॉन्चिंग स्टेशन ना होकर इसरो का, इंडिया का सतीश धवन स्पेस सेंटर है, which is again a very important thing. All right. So आप याद रखेंगे इसको. And the last point is the rocket used, very important. ठीक है, what is this GSLV F-16? It is the rocket that was used to launch this EOS, Earth Observatory Satellite. कुछ और डिटेल्स और डेटा जो आपको जानने बहुत जरूरी हो जाते हैं इसरो के बारे में. इसरो कब स्टैब्लिश हुई थी? 15 अगस्त 1969. ठीक है. इसके अलावा इसरो के बारे में आप क्या जान सकते हैं? इसरो के फर्स्ट चेयरपर्सन थे डॉक्टर विक्रम साराभाई. डॉक्टर विक्रम साराभाई. अगर आप स्पेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये नाम आपको कुछ नया नहीं लग रहा होगा. वेरी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी ही वाज. करंट चेयरपर्सन कौन है? करंट चेयरपर्सन है डॉक्टर वी नारायणन. नारायणन. ऑल राइट. सो दिस डेटा इज ट्रूली इंपॉर्टेंट. डॉक्टर वी नारायणन. सो ये सारा डेटा आपको याद करना होगा. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन which is regarding the PM of India presented 2 Bhishma cubes to Maldives. सबसे पहले अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि भीष्म क्या है? What is Bhishma? Whether it's a missile, it is an aircraft carrier, is it a cube which is basically treating people, or is it a gun? So भीष्म क्यूब्स क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं. देखिए मैंने आपके लिए इन पिक्चर्स में एक क्लैरिटी देने की कोशिश की है. भीष्म कुछ इस तरीके का होगा और इस क्यूब के अंदर 72 मिनी क्यूब्स होंगी. कितनी क्यूब्स होंगी? 72 मिनी क्यूब्स. ये मिनी क्यूब्स क्या करेंगे अभी आपको समझ आ जाएगा. और इस तरीके के कितने यूनिट दिए गए हैं मालदीव्स को? 2 यूनिट. As you can see, to strengthen the disaster and medical response capabilities of Maldives. आपने कई बार ऐसा देखा है कि इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, वॉर लाइक सिचुएशन हो गई जो कि रशिया यूक्रेन
या फिर गाजा स्ट्रिप पे आए दिन चलती रहती है, किसी तरीके की कोई नेचुरल कैलेमिटी हिट कर गई, किसी तरीके का डिजास्टर हो गया, तो ऐसे में हमें बहुत ही इमरजेंसी रिक्वायरमेंट होती है मेडिकल इक्विपमेंट्स और डॉक्टर्स की, राइट? तो टू स्ट्रेंथन द डिजास्टर एंड मेडिकल रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज ऑफ मालदीव्स, इंडिया ने अपने खुद के इंडिजिनसली बिल्ट क्यूब्स, भीष्म क्यूब्स मालदीव्स को दिए हैं. Bhishma stands for, now see this information or this full form is very important. Bhishma stands for Bharat Health Initiative for Sahyog, हित and मैत्री. हित मतलब किसी का भला चाहना, right? And मैत्री is friendship. It is an Indian project, as I told you, indigenous project that creates portable hospitals. Now see, we all know that hospitals are stationary, एक जगह पे स्थित एक बिल्डिंग होती है, right? बट ये हॉस्पिटल एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है. पोर्टेबल का मतलब होता है मूवेबल, डायनेमिक, जो अपनी जगह से मूव कर सके, ठीक है. और ये क्यूब्स क्या करेंगी, रैपिडली डिप्लॉय कर दी जाएंगी हर उस एरिया में जहां अचानक से इमरजेंसी की सिचुएशन आ चुकी है या फिर डिजास्टर या कोई भी मिसहैप हो चुका है. ऑलराइट, द मेडिकल क्यूब्स कंटेन अ रेंज ऑफ मेडिकल सप्लाईज. अच्छा, इनमें क्या होगा, एक इंटेंसिव केयर यूनिट होगी, आईसीयू स्टैंड्स फॉर इंटेंसिव केयर यूनिट. उसके अलावा एक ऑपरेशनल थिएटर होगा जहां पे मल्टीपल सर्जरीज परफॉर्म करी जा सकती हैं. एक्सरे मशीन होंगी. उसके अलावा बहुत सारे छोटे बड़े इक्विपमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड होते हैं एक ऐसे एरिया में जहां पे किसी कैजुअलिटी ने हिट किया है, ठीक है. तो ये सब इन बॉक्सेस में क्या होगा, कंप्राइज. सो कितनी यूनिट्स दी जा रही हैं, 2 यूनिट्स दी जा रही हैं. इसको मालदीव्स को देखिए, यही डेटा यहाँ पे मेंशन्ड है. एडवांस मेडिकल एंड सर्जिकल केयर दी जाएगी. इंटीग्रेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स तक होगा इसमें, मतलब एआई का भी डेफिनेटली यूज है, ठीक है. और वाटरप्रूफ है, लाइट वेट है. इवन इसकी मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंस या कुछ और एडवांटेजेस भी बताती हूँ. इसको किसी लैंड पे ही नहीं, अगर लेट्स से हमें इसकी रिक्वायरमेंट एयर में है या फिर हमें इसकी रिक्वायरमेंट वाटर्स में है, ओशंस में है, वहां पे भी कैरी करे जा सकते हैं. इनको इजीली ड्रॉप करा जा सकता है, ठीक है. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई दे आर मेड सच वे कि ये पोर्टेबल होंगे. सो आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. ओके, सो यू नीड टू कीप इन माइंड कि इंडिया ने अगर ये दिए हैं, किसको दिए हैं, मालदीव्स को, और कितने दिए हैं, 2 यूनिट्स. The next information is regarding Geelong Treaty. What is this Geelong Treaty all about? सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो यही है कि किन 2 नेशंस के बीच साइन हुई है, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच. ऑलराइट, ये Geelong Treaty is basically related to the nuclear submarine, as you can see in the picture. Alright, and what about it? देखते हैं. It is a 50-year bilateral defense cooperation agreement. 50 साल पुराना एक कॉपरेशन है, एक अग्रीमेंट है, ठीक है. और ये यूके और किसके बीच है, ऑस्ट्रेलिया के बीच. द ट्रीटी कवर्स द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ अ न्यू जनरेशन सबमरीन्स फॉर बोथ कंट्रीज. मतलब इस ट्रीटी के तहत एक इस तरीके की सबमरीन बेसिकली लॉन्च करी जाएगी या एक दूसरे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करी जाएगी, जिसकी डिजाइनिंग पे, उसके कंस्ट्रक्शन पे, वो किस तरीके से ऑपरेशन में परफॉर्म करेगी और उसकी मेंटेनेंस, इन सारे के सारे पैरामीटर्स पे फोकस किया जाएगा बाय दीज 2 कंट्रीज. द एग्रीमेंट एम्स टू स्ट्रेंथन डिफेंस टाइज एंड प्रमोट स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन. ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इसकी सिक्योरिटी, इसकी सेफ्टी बहुत ज्यादा मायने रखती है कुछ ऐसे नेशंस के लिए जैसे कि जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके. ये जो मैं जिन कंट्रीज का नाम ले रही हूँ, दीज आर दी पार्ट ऑफ क्वाड एंड ऑकस, ठीक है. क्योंकि अब आपको ऑकस के बारे में थोड़ा सा समझना होगा. देखिए, ऑकस क्या है. ऑकस एक एक्रोनिम है, एक अब्रीविएशन है जिसका फुल फॉर्म क्या है, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस. ए स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके फॉर यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस फॉर यूनाइटेड स्टेट्स. See, it's a trilateral security alliance between these 3 countries, as I already mentioned. ये क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन को, ठीक है. किसी की भी डोमिनेंस नहीं होगी, बीट चाइना और एनी अदर नेशन, ठीक है. तो ओशंस की सिक्योरिटी के लिए उसमें आप फ्री ट्रेड कर सकें, ओपन रहे आपके लिए वो एरिया. एंड द पैक्ट इज नोन एज शेयरिंग न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी.
ऑकस स्टैब्लिश होता है 2021 में, और एक ही ऑब्जेक्टिव था ऑकस का कि हम एक तो हमारी ये जो ट्राइलेटरल पैक्ट है वो कोशिश करेगी कि जितना हम न्यूक्लियर सबमरीन्स पे या इस तरीके के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पे वर्क करेंगे बेटर होगा। दूसरा, हम जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पे क्या प्रोवाइड करेंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। आपको एक और चीज ध्यान रखनी होगी, ऑकस का ऑब्जेक्टिव ये भी है क्योंकि ये जो दो नेशंस हैं यूके एंड यूएस, they are already very advanced when it comes to the nuclear submarine technology, but Australia is not this much। तो ये ऑस्ट्रेलिया को हेल्प भी करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। ये चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पास भी इस तरीके की न्यूक्लियर submarines हो। All right, so this data is very important। So Geelong Treaty किन दो नेशंस के बीच है, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। Trinidad and Tobago, ये एक ही कंट्री है, don't get confused that I'm taking name of two countries, it's a single country and it's a Caribbean country। ऐसा नहीं है कि भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस विच इज नोन एज यूपीआई आज तक किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया या उसको यूज नहीं किया, लेकिन फर्स्ट कैरेबियन कंट्री अगर कोई बनती है उसको यूज, उसको अडॉप्ट करने वाली, तो बनती है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ऑल राइट, एज आई टोल्ड यू, यूपीआई एनपीआईसी ने बेसिकली क्या करा था, फॉर्म करा था, ठीक है। और ये जो मूव है, मतलब ये जो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो पार्ट बनता है इस डिजिटल कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट का, इससे क्या होगा, डेफिनेटली एक तो डिजिटल गवर्नेंस एनहांस होगी, दोनों कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, दोनों कंट्रीज के बीच के जो बायलेटरल टाइज हैं वो एनहांस होंगे। बट इसी के साथ अगर इंडिया के इंडिजिनसली ग्रोन प्रोग्राम को या किसी भी तरीके के इनिशिएटिव को जब कोई भी कंट्री एक्सेप्ट करती है, इट गिव्स अस अ लेवरेज, राइट। So as part of the collaboration, Trinidad and Tobago will also work with India to implement other digital solutions like DigiLocker and eSign। तो देखिए, सिर्फ Trinidad and Tobago यूपीआई ही अडॉप्ट नहीं कर रहा है, वो DigiLocker को या eSign इस तरीके के कुछ प्लेटफॉर्म्स को, कुछ डिजिटल सॉल्यूशंस को यूटिलाइज करेगा। यूपीआई कब लॉन्च हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, 2016 में, एंड स्टैंड्स फॉर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। Currently 8 countries are using UPI। I have mentioned all the names, this is very important data। Static GK also comes in your examination, right? ऐसा नहीं है कि सिर्फ current affairs पढ़ लिया and you're good to go। We need to work really hard on the static GK also। So United Arab Emirates, Singapore, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, France, Mauritius and Qatar, they were already using UPI, all right? But the very new and the very first Caribbean country is Trinidad and Tobago. Important. UPI was developed by, as I told you, NPCI, all right? National Payments Corporation of India, or National Payment Indian Corporation, we also call it, that allows users to transfer money between bank and accounts using a single mobile application। ठीक है, so आप UPI के बारे में जितनी डेप्थ में एनालिसिस करके जाएंगे, it would be good for you, all right? Good question। By the year 2035, India targets that it will have its own space station। See, I see this current affair as one of the most important current affairs, all right? Why? There are only 3 nations जिसके पास अपना खुद का स्पेस स्टेशन। सबसे पहले यूएसए ने 1973 में अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन डेवलप किया था, उसके बाद रशिया और फिर चाइना। पूरी उम्मीद है कि इंडिया बन जाएगा 4th नेशन 2035 तक, लेकिन अभी टाइम लगेगा, ऑल राइट। अभी 10 साल लग जाएंगे इस टारगेट को हिट करने के लिए, बट अ गुड थिंग इज दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, राइट। सो द नेम ऑफ इंडियाज ओन स्पेस स्टेशन दैट इज बीइंग बिल्ट बाय इंडिया, very important data, Bharatiya Antariksh Station। Why to use the English name, right? We are Hindustani, so the name of the station would be Bharatiya Antariksh Station, BAS। The first module will be launched by 2028। देखिए, इसका पहला मॉड्यूल तैयार हो जाएगा within 3 years, but इसको
पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज करने में और पूरी तरीके से यूज में लाने में लग जाएगा करीब 10 years. So 2035 तक ये बन के तैयार होगा. The station will facilitate scientific research. तो देखिए जो रिसर्च अभी यहाँ से इसरो के हेडक्वार्टर विच इज एट बैंगलोर, यू नीड टू नो दिस, ओके. सो या फिर जो मल्टीपल उसकी एजेंसीज हैं जो रिसर्च वहां से हो रही थी, उसके अलावा अब जो रिसर्च है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी होगी. माइक्रोग्रेविटी पे क्या करा जाएगा, रिसर्च करा जाएगा. इट विल ऑल्सो सपोर्ट लॉन्ग ड्यूरेशन ह्यूमन स्पेस मिशन. ठीक है, अगर कोई ऐसा स्पेस मिशन है जो कि क्रूड है और उसमें काफी लंबा टाइम लगेगा, तो उसको भी सपोर्ट कौन करता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन करता है. दिस विल प्रोवाइड अ परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस इन ऑर्बिट. सी दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग, राइट. साइंटिफिक टेम्परामेंट से सोच के देखिए कि परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस कहाँ हो जाएगी, ऑर्बिट पे, विद द गोल ऑफ अकोमोडेटिंग 3 to 4 एस्ट्रोनॉट्स. ठीक है, हमारा ये भी गोल रहेगा कि एटलीस्ट 3 to 4 एस्ट्रोनॉट्स परमानेंटली ऑर्बिट पे रहेंगे और रिसर्च करेंगे. ठीक है. The project is supported by advancements in India's space program and will integrate technologies like new launchers and semiconductor research. All right. And as I already told you, the lead agency would be only ISRO, right? Indian Space and Research Organization. I've already given you the data regarding ISRO abhi pehle hi. So done and dusted for this current affair. See. Okay, I cannot think of any examination which does not ask about BRICS. See, there are some very important international organizations like BIMSTEC, SAARC, all right, Quad, AUKUS, BRICS, NATO, all right. So, इनके बारे में information होना very important, be it current affairs, be it static GK. ठीक है, so the 17th BRICS summit was held in Rio de Janeiro. कहाँ पे हुई ये summit? रियो डी जेनेरियो में. ठीक है, ब्राजील में स्थित एक खूबसूरत जगह है रियो डी जेनेरियो. कौन सी नंबर की समिट थी? 17. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि 2024 में भी हुई थी. दैट वाज द 16th समिट. और कहाँ पे हुई थी ये 16th समिट? एग्जामिनर पूछ लेते हैं लास्ट समिट के बारे में. कजान, रशिया. कजान, रशिया. थीम क्या है 17th ब्रिक्स समिट की? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस. I know it's a big theme, but you have to remember it. All right, very important. The summit resulted in the adoption of the Rio de Janeiro Declaration. एक Rio de Janeiro Declaration है, उसको बेसिकली मोहर लगा दी गई है इस समिट में, उसको अडॉप्ट कर लिया गया है. अब थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में जानते हैं, बिकॉज अगर आपसे करंट अफेयर्स का कोई भी रिलेटेड डेटा पूछा ब्रिक्स से, तो यही पूछेंगे कि 17 ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुई, या ज्यादा से ज्यादा वो ये पूछ सकते हैं अगर क्वेश्चन को ज्यादा टिपिकल करना चाहते हैं एग्जामिनर कि लास्ट समिट कब कहाँ हुई थी. लेकिन अगर जीके की बात करें, स्टैटिक जीके की रिलेटेड टू ब्रिक्स, वो ज्यादा जरूरी हो जाती है. सी, ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. देखिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा से यही 5 परमानेंट मेंबर्स थे. 2009 में जब इसकी स्थापना हुई, स्थापना कहाँ हुई? याकेंतरिंगबर्ग, ब्राजील. ठीक है, ये जगह जरूर याद रखिएगा. तब सिर्फ 4 कंट्रीज थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना. और 2010 में साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन कर लेती है और 2011 से मेंबरशिप दे दी जाती है साउथ अफ्रीका को. ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे करके इसकी मेंबरशिप बढ़ने लगी है, एक्सपैंड होने लगी है. तो और भी कुछ नए मेंबर्स जुड़े हैं, बिकॉज 5 पहले से थे, 5 और जुड़ गए. हाउ मेनी मेंबर्स डू वी हैव? 10 मेंबर्स. इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया एंड यूएई. इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, इंडोनेशिया, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, it's a recent member of Russia, of BRICS, sorry, it's a recent member of BRICS. जनवरी 2025 में अभी ज्वाइन किया है किसने? इंडोनेशिया ने. ओके, so it's the 10th member. Do you need to remember all the 10 members? Yes, it's very important. All right, so see, BRICS is a group of major emerging economies. हाँ, आप सोच रहे होंगे what is the objective of ब्रिक्स? देखिए, उभरती हुई इकोनॉमीज देश में, पूरे वर्ल्ड वाइड जो देश बहुत ज्यादा उभर रहे हैं इकोनॉमिकली, उनकी ग्रुपिंग है. ये आपस में कोऑपरेट करेंगे. ठीक है,
पॉलिटिकल कॉपरेशन भी होगा, सोशल इश्यूज भी पिक करेंगे, ठीक है. सो देयर आर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स. इट हैज इट्स ओन बैंक. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा दैट आई हैव पुट फॉर यू पीपल. न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कहाँ पे स्थित है? ये है शंघाई, चाइना में. सो एग्जामिनर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ब्रिक्स का अपना खुद का कोई बैंक है? If the answer is yes, what is the name of that bank and where is it headquartered? So the right answer is National Development Bank. All right. The Khelo India Water Sports Games was held in Dal Lake, Srinagar. See, this whole Khelo India thing is very, very important for your examination. 2017-18 में एक इनिशिएटिव लिया जाता है by Modi government, by the BJP, that the development of sports in India is very much required. और इंडिया में स्पोर्ट्स के कल्चर को बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया का कॉन्सेप्ट आया, विच इज अ नेशनल प्रोग्राम, ताकि स्पोर्ट्स को इंडिया में क्या करा जा सके, इनहांस करा जा सके. इसके मल्टीपल सर्किट्स है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम्स होते हैं. देखिए कितने सारे खेलो इंडिया के सर्किट हैं. खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स एंड खेलो इंडिया बीच गेम्स. मैंने 5 आपको सर्किट बता दी हैं, ठीक है. द 6th वन इज वाटर स्पोर्ट्स गेम. इसके बारे में देखते हैं बिकॉज यही करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में है. ये देखिए इसका मैस्किट भी है आपके सामने. ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज नोन एज SAI एंड द JNK स्पोर्ट्स काउंसिल. तो आप समझ गए होंगे कि अगर JNK स्पोर्ट्स काउंसिल है तो वेन्यू क्या था, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा है. एग्जामिनर वेन्यू ही पूछेगा. द हिमालयन किंगफिशर, सी दिस वाज द मैस्कॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर water sports, all right, and it embodies the spirit of adventure, nature and competition in the games, all right. So ये mascot क्या दर्शाता है? adventure की spirit को, all right, nature को और competition, ठीक है, competitive spirit. The inaugural event featured 6 disciplines, मतलब कुछ 6-7 sports इसमें हुए, ठीक है. जैसे कि कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपके सामने लिखे हैं, रोइंग, कैनोइंग, कायाकिंग. इनमें तो मेडल्स भी दिए गए प्रॉपर, ठीक है. डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट्स क्या थे, क्योंकि मेडल्स इनमें मिले और कुछ कुछ सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए थे. बाकी जो 3 थे, वाटर स्कीइंग, ड्रैगन बोट रेस एंड शिकारा स्प्रिंट. शिकारा की बात करूं, बहुत ही खूबसूरत सजाई हुई बोट जो कि जम्मू कश्मीर की दल लेक में बहुत फेमस है, राइट. So it was the first open age national water sports event of its kind and aimed to identify and nurture talent for future international competition. देखिए ऐसा नहीं है, इंडिया में स्पोर्ट्स बहुत खेला जाता है, बट ये जो बीच गेम्स हैं और ये जो वाटर गेम्स हैं, इनका कल्चर अभी इंडिया में इतनी इजीली सेटअप नहीं हुआ है, राइट. इसको बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के इवेंट्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है. तभी देखिए ना, इस इवेंट में सिर्फ 6 डिसिप्लिन्स थे. MP टॉप दी मेडल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम. टॉप किसने करा है मेडल? टेली को, मध्य प्रदेश ने. कितने गोल्ड्स हैं? 10 गोल्ड्स हैं, 3 सिल्वर हैं और 5 ब्रोंज हैं. ऑल राइट, वेरी इंपॉर्टेंट. द खेलो इंडिया स्कीम एम्स टू एनकरेज स्पोर्ट्स ऑल ओवर द कंट्री. और ऑल ओवर द कंट्री स्पोर्ट्स मैनशिप को इंक्रीज करने के लिए मल्टीपल सर्किट्स जो मैंने आपके लिए नीचे मेंशन, मतलब मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ बट आपके लिए नीचे मेंशन है. ओके, next is related to Indian city that will be hosting 2030 Commonwealth is Ahmedabad. See, I have put almost all the important current affairs, कहते हैं ना निचोड़, of all the 4 months. So ये कहना थोड़ा सा मतलब injustice होगा अगर मैं ये कहूँ कि this particular affair is not important or this particular news is important. All of them are, but this is truly something जिसके chances बहुत है एग्जाम में आने के. आप खुद ही समझिए ना, इतने बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स भारत में होने जा रहे हैं आयोजित, हालांकि अभी नहीं, 2030 में. और इंडियन सिटी दैट विल बी होस्टिंग 2030 कॉमनवेल्थ इज अहमदाबाद. अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं. देखिए सबसे पहले कॉमनवेल्थ की बात करी जाए, 1930 में शुरू हुए थे, ठीक है. लिखा है मैंने आपके लिए, हैमिल्टन कनाडा में, ठीक है. और अगर आप बेसिक कैलकुलेशन करें तो 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट होगी 2030 में. और ये बहुत ही फॉर्चुनेट बात है कि ये जो एनिवर्सरी होगी कॉमनवेल्थ की वो इंडिया में सेलिब्रेट करी जाएगी. ऑलराइट, अब देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स इज अ क्वाड्रेनियल इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट. इसका ये मतलब है कि वंस इन एवरी 4 ईयर, वंस इन एवरी
4 years. दैट मीन्स अभी 2022 में बिर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे, मैं आपको बता दूं बिर्मिंघम इंग्लैंड में 2022 में हुए थे। अब 4 साल बाद, ये डेटा बहुत जरूरी है कि नेक्स्ट कॉमनवेल्थ जो कि अगले साल होने जा रहे हैं आयोजित, वो कहाँ होंगे। सो आप लिख सकते हैं मेरे साथ ग्लासगो, ग्लासगो, और ग्लासगो है स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड, ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। लेकिन उसके बाद जो होंगे 4 साल बाद, वो प्रॉब्ली अहमदाबाद में होंगे। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि देखिए नाइजीरिया ने भी ये 2030 गेम्स के लिए अपनी बिड दी है कि नाइजीरिया भी चाहता है कि वो होस्ट करे 2030 कॉमनवेल्थ। लेकिन ऐसा स्पेकुलेशन है कि बिकॉज ऑफ नॉट दैट मच अमाउंट, एंड कहते हैं ना इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है नाइजीरिया की जितनी इंडिया की है, तो एक डाउट है कि कॉमनवेल्थ को जो कमिटी ऑर्गेनाइज करती है उनको एक डाउट है कि क्या नाइजीरिया इसको अच्छे से होस्ट कर भी पाएगी या नहीं। और बहुत हद तक ये बिड कौन जीत चुका है, अहमदाबाद ही जीत चुका है। और तभी मैं करंट अफेयर आपके लिए मैंने यहाँ पे पुट करा है। हालांकि 2-3 फैक्टर्स अभी भी बच रहे हैं, 2-3 पैरामीटर्स अभी भी बच रहे हैं, बट इट वुड बी वेरी सेफ टू से कि अहमदाबाद विल बी ओनली होस्टिंग इट। द कॉमनवेल्थ स्पोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ये देखिए मैंने जिस अभी अथॉरिटी का नाम लिया, मेंशन किया, उन्होंने अहमदाबाद को एक इवैल्यूएशन प्रोसेस के बाद सिलेक्ट करा। एज आई टोल्ड यू, कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि भाई क्या अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट कर भी पाएगा। कुछ सोचिए, स्पोर्ट्समैन आएंगे बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज से, स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, एक बहुत बड़ा स्टेडियम रिक्वायर्ड होगा, राइट, कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, सिटिंग कैपेसिटी, क्लीन सिटी होनी चाहिए, सेफ सिटी होनी चाहिए, इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। सो इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल डिलीवरी, एथलीट एक्सपीरियंस, सब कुछ देखते हुए फाइनल, मतलब इन्होंने तो हाँ बोल दिया स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने, बट ये फाइनल डिसीजन किसके पास जाएगा, जनरल असेंबली जो कि ग्लासगो में अभी 2026 में बैठेगी। और आपको ये फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि अहमदाबाद विल बी होस्टिंग द 2030 कॉमनवेल्थ। The Noakhai festival of Odisha is celebrated on 28 अगस्त। क्या जरूरी है इस तरीके के करंट अफेयर? बिल्कुल जरूरी है, ठीक है, देखते हैं कैसे। बिकॉज आर्ट एंड कल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स। अभी तक जितने भी करंट अफेयर्स मैं आपको करवा रही थी वो किस पे बेस थे, वो बेस थे आपके आर्ट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, एनवायरनमेंट पे, स्पोर्ट्स पे। लेकिन पहला क्वेश्चन जो आर्ट एंड कल्चर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये जो नुखाई या नुआखाई फेस्टिवल है, कहाँ का है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे, क्या सिर्फ उड़ीसा का नहीं। देखिए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है, वहां पे जो लोग रहते हैं वो इस फेस्टिवल को बड़े चाव से सेलिब्रेट करते हैं। एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, वेस्ट उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा सेलिब्रेट करा जाता है। अच्छा, कौन सी क्रॉप की बात हो रही है भाई, यहाँ पे राइस की बात हो रही है, जो खरीफ सीजन में ग्रो किया जाता है, राइट। राइस बोल ऑफ इंडिया भी है वेस्ट बंगाल, राइट। सो सम अदर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, इसमें तो इतना ही डेटा रिक्वायर्ड है कि नुआखाई कौन से स्टेट में सेलिब्रेट होता है, बट उसके बाद मुझे कुछ डेटा आपको जो डिलीवर करना बहुत जरूरी लगता है एग्जाम्स के लिए, वो है कि कुछ अदर हार्वेस्ट फेस्टिवल, बिकॉज एग्जाम में बहुत आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और भी कुछ फेस्टिवल हैं जैसे कि विशु केरला में, कर्नाटका में, ठीक है। पोंगल कहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु। ओनम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केरला। नबन्ना वेस्ट बंगाल में। वांगला कहाँ, मेघालय, जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, मौसम सुना होगा आपने, एंड असम में। सो ये डेटा बहुत जरूरी है, आप प्लीज इनको रिवाइज करना मत भूलिएगा। द नेक्स्ट इज रिलेटेड टू तमिलनाडु। लेट्स सी क्या पढ़ने जा रहे हैं तमिलनाडु के बारे में। Oh, this whole set of file is important for you people. तमिलनाडु ने अनवील किया है एजुकेशन पॉलिसी को, और वो एजुकेशन पॉलिसी जो तमिलनाडु ने लॉन्च की है वो किसको काउंटर करेगी, वो काउंटर करेगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। तो पहले तो बहुत बड़ा स्टेप है भाई, ठीक है, क्योंकि मैंने जैसा कि बोला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना। सो दिस इज द फुल फॉर्म। भारत में 3 बार आ चुकी है, 1968 में, 1986 में और 2020 में। द करंट एनईपी रिप्लेसेस, अच्छा ये जो रिसेंट वाली एनईपी है ये रिप्लेस करती है 10+2 को, और इसकी जगह कैसा आ गया है सिस्टम, 5+3+3+4।
इस पूरे स्ट्रक्चर को आप एनईपी के बारे में जरूर पढ़िएगा, इस स्ट्रक्चर के बारे में जरूर पढ़िएगा, इंटरेस्टिंग है। फिलहाल मैं करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से बताती हूँ क्या जरूरी है। तमिलनाडु ने इस एनईपी को क्या कर दिया है, अपोज। रीजन क्या है अगर आपसे कोई पूछे, देखिए रीजन है उनकी भाषा। ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है जो कि एनईपी अपना रहा है, ठीक है, ये इस 3 लैंग्वेज स्ट्रक्चर में एनईपी चाहता है कि हिंदी को भी बहुत अच्छे से क्या करा जाए, लर्न करा जाए, सीखा जाए इंडिया के बच्चों द्वारा, ठीक है, बीट एनी स्टेट। बट तमिलनाडु को एक डर है, तमिलनाडु को ये डर है कि जब हमें हिंदी नहीं आती, जब हमने हिंदी कभी बोली नहीं, कभी यूज नहीं की, तो हम हिंदी क्यों सीखें, क्यों उस तरीके का प्रेशर डाला जाए। तमिलनाडु चाहता है कि जो कैंडिडेट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी ही मदर टंग में क्या करें, पढ़ाई करें, आगे लाइफ स्किल सीखें, और इसीलिए वो क्या लेकर आए हैं, खुद की अपनी स्टेट एजुकेशन पॉलिसी, जिसे अब क्या बोला जा रहा है, एसईपी, ठीक है। और क्या कहता है तमिलनाडु, तमिलनाडु इस 3 लैंग्वेज की जगह मैंडेट करेगा, लागू करेगा 2 लैंग्वेज फॉर्मूला को, तमिल एंड इंग्लिश। सी ना, इन 2 लैंग्वेजेस को ही प्रेफरेंस देना चाहेगा और देगा भी। It requires Tamil as a compulsory subject up to class 10th. In fact, class 10 तक तमिल को वो एक compulsory subject की तरह देखते हैं, rejecting the NEP's 3 language approach, because उन्हें हिंदी नहीं सीखनी, ठीक है। तो 3 लैंग्वेज अप्रोच नहीं तमिलनाडु को चाहिए, तमिलनाडु को 2 लैंग्वेज अप्रोच चाहिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा इट इज। एंड इट एलिमिनेट्स पब्लिक एग्जाम फॉर क्लास 11th एंड अपोजेस सेंट्रलाइज्ड एंट्रेंस एग्जाम। ओह, दिस इज वेरी अमेजिंग। सी, इनकी स्टेट एजुकेशन पॉलिसी में एक और चीज है, एलिमिनेट कर देगा पब्लिक एग्जाम्स को, ठीक है। क्लास 11th से या उसके बाद से जितने भी एग्जाम होंगे वो सेंट्रलाइज नहीं होंगे, मतलब तमिलनाडु खुद अपने कुछ एग्जाम्स या खुद का मार्किंग सिस्टम बेसिकली क्रिएट करना चाहती है। सो देयर इज लॉट टू स्टडी, ट्रस्ट मी। अगर आप इसको डेप्थ में बहुत पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, हालांकि करंट अफेयर में आएगा तो सिर्फ इतना रिक्वायर्ड है। एंड एज अ टीचर आई फील हार्ड वर्क इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट, स्मार्ट work also has a place, a vital place if you want to clear any of the examination. इसीलिए मैंने unnecessary data वहां पे आपको समझाने की कोशिश नहीं की है। Delhi Legislative Assembly is India's first legislative assembly to run entirely on solar power with 500 kilowatts plant. Very very important for your exam. See, इकलौती legislative assembly जो कि जिसकी पूरी जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी दे विल बी रनिंग, वो कहां से आएगी, सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन से आएगी, ठीक है। एंड इसीलिए इसको बोला जा रहा है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ये प्रमोट करती है 100% पेपरलेस सर्विस को। द इनिशिएटिव वाज लॉन्च अलोंगसाइड द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जिसको नीवा भी कहा जाता है, टू प्रमोट पेपरलेस फंक्शनिंग विद इन द असेंबली। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू सेव, सी कितने ज्यादा रुपए बचने वाले हैं, 1.75 करोड़ एनुअली, एंड एम्स टू सर्व एज अ मॉडल फॉर लेजिस्लेचर इन द कंट्री। सो सिर्फ पेपरलेस नहीं हो जाएगा, जितना भी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, व्हाटएवर technology you're using, whatever appliances you're using, they'll purely run on the solar energy. So this data is very important, ठीक है। अभी तक और किसी लेजिस्लेटिव असेंबली ने नहीं करा है। India's first Gaganyaan test flight is scheduled in December. Very important, though I have covered it multiple times in my earlier current affairs session, but पढ़ना ही पड़ेगा, very important. The mission Gaganyaan will carry Vyomitra, a half-humanoid female robot, to simulate astronaut conditions and provide, as you know, it's a crewed mission, right? लेकिन astronauts या फिर basically Indian Air Force के 5 ऑफिसर्स को इस मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया है, लेकिन सीधे उन्हें भेजना इज नॉट सेफ, राइट। सो पहले कौन जाएगी, पहले जाएगी व्योमित्रा, इसका नाम, इस ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। व्योमित्रा जाएगी, शी इज अ हाफ ह्यूमनॉइड, फीमेल रोबोट। ये सिमुलेट करेगी वहां की कंडीशंस को, क्रिटिकल डेटा कैप्चर करेगी, देखेगी कि वहां लाइफ सपोर्ट पॉसिबल है या नहीं, एनवायरमेंटल इकोसिस्टम किस तरीके का है, ठीक है। और इससे पहले कि इंडिया अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजे, ठीक है, और वो कब भेजेगा, अभी नहीं, 2 साल बाद, 2 years later, 2027 में। The Gaganyaan mission will be an uncrewed flight to test the spacecraft's system, including the crew module, escape system, and life support. With the help of the humanoid robot,
Vyomitra. All right, the mission will demonstrate the performance of the crew module as I told you. ठीक है, और लो अर्थ ऑर्बिट पे इस मॉड्यूल को बेसिकली स्टैब्लिश किया जाएगा और सर्वे ये क्या करेगी, इट विल सर्व एज अ प्रीकर्सर टू फ्यूचर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो मैंने आपको बताया वही सब इसमें लिखा हुआ है. ठीक है, और इम्पोर्टेंट ये देखिए, दिस स्लाइड इज मोर इम्पोर्टेंट. ये रहे वो 5 एस्ट्रोनॉट्स, 5 इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स जिनको बेसिकली इस मिशन के लिए क्या किया गया है, सिलेक्ट किया गया है. द गगनयान क्रू कंसिस्ट ऑफ 4 एस्ट्रोनॉट्स. मैंने आपके लिए नाम भी लिखे हैं. ठीक है, सॉरी आई want to change the data, not 5 4. मैंने इनको अलग से काउंट कर लिया है. आप इनको अच्छे से जानते हैं. ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ये एक्सियम 4 मिशन में भी थे. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई गॉट अ बिट कंफ्यूज. देयर विल बी 4 एस्ट्रोनॉट्स. नाम आपके सामने है. ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायक, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्ण एंड ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला. They have undergone training in Russia and at the ISRO astronaut training facility Bangalore. मतलब इन्होंने 2 जगह ट्रेनिंग ली है, इसरो की भी फैसिलिटी में, ट्रेनिंग फैसिलिटी में, और रशिया में भी. वन ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स सी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑलरेडी फ्लोन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन एक्सियम मिशन 4 इन जून 2025. ऑलराइट, जो कि इसरो नासा का एक जॉइंट वेंचर था. सो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड. दिस विल श्योरली कम. Okay, so the next current affair is related to Albania. See, why this is important, it has become the first country globally to appoint someone who is not a human minister, rather an AI-powered minister, all right? What is the name of this AI-powered minister? So how will the examiner ask this question? There will be 2 ways. The very first way is, who is the first country to do so? Albania. And what is the name of this particular minister? This particular AI powered minister, I should rather say, artificial intelligence, right? So the name is Diela. नाम क्या है? Diela. Diela, which means sun in Albania. और पता है Diela का मतलब होता है सूरज, sun. हालांकि इनकी भाषा में इसको sun को अल्बानिया बोला जाता है. मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही मिनिस्टर है. ठीक है, दिस इज बिट ऑब्वियस. सितंबर 2025 से ये उस पद को संभालेंगे. ठीक है. The primary goal of appointment or the primary goal of appointing DLI is to eradicate long-standing corruption. देखिए corruption बहुत हो रहा है और ऐसे में भाई अगर AI मिनिस्टर होंगी, कोई लेवरेज नहीं देंगी, किसी तरीके का इमोशनल कनेक्ट नहीं होगा किसी के साथ, अनबायस्ड होगी ये मिनिस्टर बिल्कुल. ठीक है, और ये क्या करेगी, एकदम जस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगी. ठीक है, फेयर सर्विस प्रोवाइड करेंगी. She was created to oversee government contracts, eliminate human bias and deliver transparent public spending. तो इस तरीके से इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, important है. The 25th SCO, very very important. What is this SCO? It is Shanghai Cooperation Organization. So the very first doubt that students basically have that SCO headquarter must be Shanghai. No. वो पहले सबसे देख लेते हैं. शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बताइए कहाँ है तो चाइना में, बट द सिटी इज बीजिंग. ठीक है. The summit saw the adoption of the Tianjin Declaration with the key outcomes including a focus on security and connectivity. अच्छा, ऑब्जेक्टिव की तो बाद में बात करेंगे. सबसे पहले क्या था वेन्यू, बिकॉज बहुत जरूरी है. आपने 17th समिट जो ब्रिक्स की थी उसका भी वेन्यू देख लिया है. अब आपको वेन्यू देखना होगा, याद करना होगा. SCO का भी एक डेक्लेरेशन है जिसका नाम है तियानजिन डेक्लेरेशन. इसके कुछ की आउटकम्स हैं. ये किन पे काम करेंगे, सिक्योरिटी पे काम करेंगे, कनेक्टिविटी पे काम करेंगे. ये देखिए SCO में भी ना मल्टीपल मेंबर्स हैं. मैंने आपके लिए सारे मेंबर्स नीचे लिखे हैं. चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान. इंडिया पाकिस्तान एक साथ ज्वाइन करती है 2017 में. किसको? SCO को. ईरान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान एंड बेलारूस. ये सारे देश मिलके पता है कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, कंडेमिंग टेररिज्म, मतलब टेररिज्म नहीं होना चाहिए. ठीक है, जिसमें पाकिस्तान एक पार्ट है. दिस इज समथिंग नोन एज सरकाज़म. बट एनीवे, रिफॉर्म्स, ग्लोबल गवर्नेंस, ऑलराइट, इन सब पे काम करा जाएगा. द चेयरमैनशिप फॉर द नेक्स्ट टर्म. अच्छा, अब अगली 26th कहाँ होगी, मैंने ये भी लिखा है, किर्गिज रिपब्लिक.
ठीक है. द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज एन Eurasian political, economical and international organization of 10 members and I've already mentioned कब इसकी स्थापना हुई थी 2001 में. सो ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम्स. इसको आपको रिवाइज करना होगा. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. ये देखिए, आप इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं किस तरीके से कंट्रीज मैप में लोकेटेड है. See, the next is the rank of India in the Global Innovation Index. Our index reports, ranks important for current affairs. They are very much important, all right? And some of the indexes that I have mentioned are truly important. See, Global Innovation Index 2025 में इंडिया की रैंक रही है 38. इसमें ज्यादा डेटा याद करने का नहीं होता. आप ज्यादा से ज्यादा ये देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स को किसने पब्लिश करा है, हु इज द पब्लिशर. बट उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम्स में इंडिया की रैंक, या फिर किसने उस इंडेक्स को टॉप किया. इंडिया की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंक है 38. मतलब इंडिया कितना आगे है इनोवेशन के मामले में. ठीक है, 38 रैंक है. इतनी भी बुरी नहीं है, थोड़ा सा बेटर करा है इंडिया ने, सच बताऊं पिछली बार से 1-2 रैंक ऊपर आया है. उसके अलावा मैंने आपके लिए कुछ और इंडेक्स भी मेंशन करे जो मुझे इक्वली इंपॉर्टेंट लगते हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए. तो सारे 2025 के ही हैं, इनमें से कुछ 24 के हैं क्योंकि अभी तक उनका रीसेंट 2025 का इंडेक्स रिवील नहीं हुआ है. बाकी देखते हैं क्लाइमेट चेंज, भारत कितना जद्दोजहद करता है एनवायरनमेंट को बचाने में, सेव करने में. ठीक है, उसमें इंडिया की 10th रैंक है. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कितना सेफ है इंडिया का पासपोर्ट, उसमें 85 रैंक है. ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, मतलब इंडिया की मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए. हालांकि मैंने इससे पहले जो करंट अफेयर्स की क्लासेस ली हैं उसमें सब कुछ कवर हो चुका है. ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 14th पे है. क्या भारत में भी है? हाँ, नक्सलिज्म है और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से टेररिज्म पे हमारी ये रैंक है. इनोवेशन जो कि ऑलरेडी मेंशन्ड है. हंगर इंडेक्स भुखमरी है भारत में बहुत है और बहुत ही बुरी रैंक है हमारी. ठीक है, 102. वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 41. सो आई रिपीट माई सेल्फ, दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट टेक इट लाइटली, इट विल कम इन योर एग्जाम. द फाउंडेशन ऑफ or the foundation to educate girls globally, widely known as Educate Girls. So इस फाउंडेशन का नाम ही सबसे पहले तो बड़ा जरूरी है. रीजन बीइंग इन्हें जो अवार्ड मिला है वो खुद में एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, विच इज नोन एज रेमन मैग्सेसे अवार्ड. आपको पता है इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है. कितना इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये आप सोच सकते हैं. ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन इंडिया. ये जो इंडिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो ये सीए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की है. एशिया में किसी को भी मिल सकता था अवार्ड, राइट? और लेकिन ये किसको मिला 2025 वाला? इंडिया बेस्ड एजुकेट गर्ल्स नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन को. और ये करती क्या है कि बहुत सारी गर्ल्स को इन्होंने, देखिए 2 मिलियन, करीब 2 लाख लड़कियों को उनके घर से निकाल के स्कूल तक पहुंचाया है. ठीक है, पढ़ाने की कोशिश की है, विच इज अ ग्रेट इनिशिएटिव. इंपॉर्टेंट है. रेमन मैग्सेसे के बारे में देख लेते हैं. फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे रेमन मैग्सेसे. ठीक है, और ये उन्हीं के ऑनर में 1957 में सेटअप किया गया अवार्ड है. द अवार्ड रिकॉग्नाइजेस इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. जरूरी नहीं है हर बार किसी इंडिविजुअल को मिले, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है. इंटेग्रिटी है अगर आपके अंदर, अगर आप एक अच्छी गवर्नेंस, अगर आप में करेज है, अगर आप सोशल सर्विस करते हैं, लोगों को ऑप्टिमिज्म की तरफ ले जाते हैं, आपकी जो सोच है वो प्रैग्मेटिक है, पॉजिटिव है, आप लाइफ में कुछ कर दिखाना चाहते हैं, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आपको इस ऑनर से नवाजा जाता है. द अवार्ड वाज फाउंडेड एज आई टोल्ड यू 1957 में बाय द ट्रस्टीज ऑफ रॉकफेलर ब्रदर्स फंड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, विद द कॉन्करेंस ऑफ द फिलिपीन गवर्नमेंट. ठीक है, तो मैं मानती हूँ कि वहां के प्रेसिडेंट के नाम पर है, लेकिन इसको किसने इसको बेसिकली फंड किया, मतलब या फिर किसने इसको फाउंड किया, तो वो थे रॉकफेलर ब्रदर फंड्स. ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसको क्या कहा जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार. ये डेटा नीचे जो दिया है शायद सबसे जरूरी डेटा होगा आपके स्टैटिक जीके के लिए, कि पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नवाजा गया था
रेमन मैगसेसे अवार्ड से, तो वो थे आचार्य विनोबा भावे. ऑलराइट, लेट्स मूव. Malayalam actor Mohanlal was conferred with the prestigious Dada Saheb Phalke Award for the year 2023, the highest recognition in Indian cinema. Now, आप लोग सोच रहे होंगे कि we are on 2025, why we are going through this data. देखिए, कई बार ये अवार्ड थोड़ा डिले हो जाता है, तो अभी जो दिया गया है, अभी जो 2025 में दिया गया है, वो 2023 ईयर के लिए दिया गया है. ठीक है. So the award was officially presented to Mohanlal. और किन्होंने दिया, जैसा कि आप पिक्चर में देख ही सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है. 71st नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी थी न्यू दिल्ली में, तब दिया गया है. ही इज द सेकंड पर्सन फ्रॉम दी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री जिनको ये अवार्ड दिया गया है. मिथुन चक्रवर्ती को भी इनसे पहले दिया गया था. ठीक है. आफ्टर फिल्म मेकर अदूर गोपाल कृष्णन. तो पहले मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कौन थे जिन्हें ये अवार्ड मिला था? अदूर गोपाल कृष्णन. दूसरे कौन है जो एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट है? मोहनलाल. आपने इन्हें बहुत मूवी में देखा होगा. इज अ वेरी फेमस एक्टर ऑफ टॉलीवुड. टॉलीवुड इज साउथ की मूवीज, राइट. द अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, 1969 में बाय धुंधीराज गोविंद फाल्के. ठीक है. एंड वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा. सी दिस दादा साहेब फाल्के, इनको ऑनर के लिए बोला जाता था, नाम तो इनका ये है. ठीक है. और ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट अवार्ड है कि इसको इनको मतलब फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है दादा साहेब जी को, और इनके ऑनर में दिया जाता है हर एक अच्छे एक्टर को या एक्ट्रेस को. ठीक है. इंडिया फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म हरिश्चंद्र. ये बहुत इंपॉर्टेंट, पता है, ये स्टैटिक जीके में आने वाला क्वेश्चन कि कौन सी पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म थी भारत की? तो थी 1913 की हरिश्चंद्र. ठीक है. और इस अवार्ड को हर साल दिया जाता है बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स एट द नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी. ठीक है. सबसे पहली कौन थी? आपके मन में ये भी आ रहा होगा, 1969 में वेटरन एक्ट्रेस देविका रानी को पहली बार दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था. ठीक है. द वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑन 16 सितंबर. अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. सी, एवरी ईयर ऑन 16 सितंबर वी सेलिब्रेट ओजोन डे. हम ओजोन लेयर जो हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करते हैं, उसके अवेयरनेस के लिए और उसकी फर्दर सेफ्टी के लिए इस डे को हर साल 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है. So to commemorate the signing of the Montreal Protocol in 1987, I cannot even remember कि कितनी बार ये डेटा पूछ लिया गया एग्जाम में कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक तो ईयर बताइए और ऑब्जेक्टिव बताइए. तो 1987 में बेसिकली मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल साइन होता है कि हमें किसको प्रोटेक्ट करना है? ओजोन को. ठीक है. क्योंकि ओजोन क्या हो रही थी, बहुत तेजी से डिप्लीट होती चली जा रही थी. ठीक है. तो उसको बचाने के लिए हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1987 में साइन किया था, और बेसिकली ओजोन को सेफ एंड साउंड रखने के लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली प्रोक्लेम सितंबर 16. डेफिनेटली यूएनजीए, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी, एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है, वो ओजोन लेयर को 1994 से, मतलब आई नो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ही हो गया था, बट करीब 7 साल बाद से, मतलब 1994 से हम हर 16 सितंबर को ओजोन डे वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट करते हैं. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हम, नॉट ओनली इंडिया, all over the world. All right, the day was designated by the United Nations to raise global awareness about the importance of the ozone layer and the need for its preservation. Is this something very important? Yes, it is. What was the theme for 2025? From science to global action. That was the theme of this Ozone Day 2025. The 8th International Solar Alliance Conference was held in New Delhi. See, बहुत एक अच्छा स्टेप लिया गया था 2015 में, जब COP21 ऑर्गेनाइज हुई थी. फर्स्ट ऑफ ऑल, COP स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज.
ठीक है, क्या होता है 2015 में ऐसा खास? देखिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट मिलकर जितनी भी कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच लाई करती हैं, वो कंट्रीज 2015 से अब तक सोलर पावर को हार्नेस कर रही हैं। आपको पता होगा, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि दिस रीजन, द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज वेरी रिच इन सनलाइट। उसके बाद जो सनलाइट की रेज होती है ना, इस रीजन के बियॉन्ड स्लैंटेड होने लग जाती है, सो इतनी प्रचुर मात्रा में नहीं गिरती हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री का बहुत एक अच्छा आइडिया था, इनिशिएटिव था 2014 में, जब गवर्नमेंट आती है बीजेपी गवर्नमेंट, एक साल बाद वो कुछ इस तरीके से प्लान करती है कि क्यों ना इस एनर्जी को क्या करा जाए, इस सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करा जाए। भारत भी आपने देखा होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ठीक बीच से निकलती है, राइट? सो बहुत ज्यादा रिच अमाउंट में आती है सनलाइट। तो उन्होंने ये आइडिया फ्रांस के प्रेसिडेंट से शेयर करा और इन दोनों ने मिलकर 2015 में एक इनिशिएटिव लिया। उस इनिशिएटिव का नाम ही क्या था? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और जैसे ही इस इनिशिएटिव को लागू किया गया, ये जल्दी से सेटअप हो जाती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है इंडिया में। सो ये बेसिकली एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, ना कि किसी और देश में। सो ये है कहाँ? गुरुग्राम, हरियाणा। और ये जो 8 इंटरनेशनल सोलर अलायंस थी, ये कहाँ हुई? न्यू दिल्ली। बहुत सारी कंट्रीज से पार्टिसिपेंट्स आए। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में करेंटली कितने मेंबर्स हैं? 124 मेंबर्स हैं। 4 देशों को छोड़ के बाकी सभी 120 देश के मिनिस्टर्स करीब यहाँ पे आए, पार्टिसिपेट करा। थीम क्या थी इस 8th इंटरनेशनल सोलर कॉन्फ्रेंस की? वन सन, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। हाइलाइट्स क्या थे? क्या कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स थे? क्या इनिशिएटिव्स थे? कुछ लॉन्च हुए क्या? बिल्कुल। 6 सोलर प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करा गया है। अफ्रीका सोलर फैसिलिटी विद अ फोकस ऑन मोबिलाइजिंग सोलर फाइनेंस एंड बिल्डिंग ग्लोबल सोलर कैपेसिटी। देखिए, जब ये 2015 में इनिशिएटिव लिया गया था, तो भारत ने, फ्रांस ने सिर्फ ये नहीं कहा कि जितनी भी कंट्रीज कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच है, सिर्फ उन्हीं को इससे एडवांटेज प्रोवाइड होगा। नहीं, डेफिनेटली वो लोग हार्नेस करेंगी सोलर एनर्जी को, क्योंकि सबसे ज्यादा उधर ही प्रचुर मात्रा में सनलाइट आती है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी बियॉन्ड दो 2 लाइन्स, जितनी भी कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, वो भी उसको यूटिलाइज करेंगे। तभी आप देख रहे हैं कि अफ्रीका सोलर फैसिलिटी या इस तरीके के जो लॉन्च करी गई थी इनिशिएटिव, इट वाज पार्ट ऑफ 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इट वाज आल्सो अनाउंस्ड दैट चाइना वुड बी जॉइनिंग द आईएसए। ऐसा कहा भी गया कि इस 8th कॉन्फ्रेंस में कि ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि चाइना क्या करेगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बहुत जल्दी ज्वाइन करेगा। ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में बाकी सब कुछ बता दिया है। द प्राइमरी गोल इज टू एक्सेलरेट द डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी एंड मोबिलाइज ओवर यूएस डॉलर, कितना? 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करा जाएगा सोलर सॉल्यूशंस में बाय द एंड ऑफ 2030। ठीक है, चलिए। मुखी कौन है? अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है मुखी, जैसे कैरेकल क्या है? एक वाइल्ड कैट है, उसी तरीके से मुखी अगेन एक एनवायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ये चीता है। चीता कहाँ का चीता है? कूनो। कूनो है क्या? कूनो इज बेसिकली अ नेशनल पार्क। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मैं आपको बता चुकी हूँ कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र। हालांकि इससे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो अंडमान एंड निकोबार में है, राइट, बट वो एक यूनियन टेरिटरी है, तो स्टेट तो अभी भी सबसे आगे महाराष्ट्र है जब बात आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। लेकिन जब बात आती है नेशनल पार्क की, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क है, जिनमें से एक है कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, चीता के लिए बहुत जाना माना जाता है। और यहाँ से अगर आपने ध्यान दिया हो, कुछ साल पहले साउथ अफ्रीका के नमीबिया से कुछ चीता लाए गए थे प्रोजेक्ट चीता के तहत, राइट। सो वही नेशनल पार्क है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट चीता के बारे में देख लीजिए। इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू रीइंट्रोड्यूस द चीतास टू इट्स हिस्टोरिकल रेंज आफ्टर द इवेंट। देखिए 1952 में ना ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए थे चीता, लेकिन ये प्रोजेक्ट क्या करेगा? अगेन इनकी पॉपुलेशन को इनहांस करेगा, इंक्रीज करेगा।
The project involves relocating cheetahs from countries like Namibia, South Africa, Botswana. क्यों यहाँ से ही क्यों लाए जा रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे अबंडेंस है, यहाँ पे इनफ चीताज है, और कूनो में लाया जाएगा, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा एमपी में। मुखी एक फीमेल चीता है जो भारत में ही जन्मी है। अब देखिए, अभी जैसा कि मैंने आपको बोला, इंडिया में तो कोई चीता था ही नहीं ना, सो कुछ सालों पहले कूनो नेशनल पार्क में चीता लाए गए, राइट, और कहां से लाए गए? बाहर से लाए गए, नमीबिया से लाए गए। अब ऐसे में जब ब्रीडिंग डेफिनेटली हुई, पॉपुलेशन तो बढ़ानी ही है, कूनो नेशनल पार्क में बहुत ध्यान दिया गया उन लाए हुए चीता, जितने भी चीतास थे उन सबका, और एक छोटी सी प्यारी सी क्या होती है, कब होती है, जिसका नाम है मुखी। और अच्छी बात यह है, शी इज अ फीमेल चीता, मादा है तो और ज्यादा ब्रीडिंग, मतलब और ज्यादा चीता को जन्म दे सकती है। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग, इजंट इट? सो बॉर्न टू नमीबियन चीता ज्वाला, मतलब इनकी जो मदर, जो इनकी जिनसे जन्म लिया है मुखी ने, वो तो नमीबिया की है, उसका नाम क्या रखा है भारतीयों ने? ज्वाला, ठीक है, और मध्य प्रदेश। So मुखी सर्वाइवल इज बीइंग हेल्ड एज अ सिग्निफिकेंट ब्रेकथ्रू अमिड कंसर्न्स ओवर हाई मोर्टेलिटी एंड चैलेंजेस इन हैबिटेट अडेप्टेशन। देखिए, इतना आसान नहीं होता कि कोई चीता अगर नमीबिया से लाया गया, जैसे ज्वाला लाई गई नमीबिया से भारत, तो वो अडेप्ट भी कर ले, तो बहुत ज्यादा कंसर्न्स थे, मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ रहा था। ऐसा नहीं कि लाए गए और बहुत अच्छे से ब्रीडिंग हो रही है, बहुत सारी दिक्कतें भी थी, मोर्टेलिटी भी बढ़ती जा रही थी कब्ज की। ऐसे में मुखी ने सिर्फ जन्म नहीं लिया है, हेल्दी कब है और उसको बड़ा भी किया जा रहा है। व्हाट इज दिस? इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन। व्हाट इज डुगोंग? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, क्योंकि जब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरे करंट अफेयर के सेशन में एनवायरमेंट वाज देयर, राइट, एंड इट रियली कम्स इन योर एग्जामिनेशन हर एस्पेक्ट से। कोई भी डैम से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर रिवर से, किसी नेशनल पार्क से, किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, कोई रामसर साइट इंडिया की किसी साइट को दर्जा अगर दिया जाए, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की बात हो, बीचेस की बात हो, तो इन सेक्शंस को आप अवॉइड नहीं कर सकते, राइट। डुगोंग के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। डुगोंग एक मरीन मैमल है, इट्स अ मरीन मैमल, और इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को क्या मिल गया है? IUCN रिकॉग्निशन। सबसे पहले IUCN के बारे में समझते हैं। IUCN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। देखिए, आपने देखा होगा देयर आर मल्टीपल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बात करूं WHO की, विच इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हेल्थ के सेक्टर में क्या करता है, या वर्ल्ड वाइड सबको हेल्थ केयर प्रोवाइड हो, दे वर्क फॉर इट, राइट, और इट वर्क्स फॉर इट। बात करूं अगर मैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो ग्लोबली जो ट्रेड होता है उसकी स्मूथनेस पे, उसकी मोबिलिटी पे ध्यान देता है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग पर्पस है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड वाइड पीस का ऑब्जेक्टिव रखती है। तो ये जो IUCN है, ये क्या करती है? ये नजर रखती है भाई वर्ल्ड वाइड, क्या इकोलॉजी बैलेंस्ड है, क्या एनवायरनमेंट बैलेंस्ड है, क्या इकोसिस्टम की साइकिल को किसी भी प्रकार से डिसरप्ट तो नहीं किया जा रहा। तो इस प्रकार की एक लिस्ट जारी करती है। कोई अगर स्पेशी, मैं फ्लोरा फोना दोनों की बात कर रही हूँ, कोई अगर एक्सटिंक्ट हो गया तो उसको मेंशन कर देगी, कोई एंडेंजर्ड है तो उसको डाल देगी रेड लिस्ट में, ताकि जितनी भी वर्ल्ड वाइड नेशंस हैं वो उन स्पेशीज को क्या कर सके, रिवाइव कर सके, राइट, या जो भी बच चुकी है, एंडेंजर्ड है बट कम है, उनको आगे आने वाले फ्यूचर के लिए सस्टेन कर सके। अब ऐसे में होता जनरली ये है कि ये जो कंजर्व है, इसको अगर IUCN ने कोई दर्जा दिया है तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट्स लाइक एन अचीवमेंट फॉर इंडिया, इट्स लाइक अ माइलस्टोन। सो ऐसा नहीं कि भारत में डुगोंग नहीं था। डुगोंग जैसे कि आप एक क्यूट सा देख सकते हैं, इसको पता है, इसको वाटर काउ भी कहा जाता है। दिस ग्रे क्यूट एनिमल इज ऑल्सो नोन एज अ वाटर काउ, बिकॉज मैंने बोला ना मरीन मैमल, तो पानी में ही कंफर्टेबल है, वहीं ज्यादा रहता है। और बेसिकली एक आप देखें शेप थोड़ा सा काउ की तरह है, कैटल की तरह है, ठीक है, तो इसको क्या बोल दिया जाता है, वाटर काउ बोल दिया जाता है। अब जो IUCN है उसने इस डुगोंग कंजर्वेशन रिसर्च को
क्या कर दिया है, एक दर्जा दे दिया है, रिकॉग्निशन दे दिया है। बट इससे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन और कहां से बन सकते हैं? क्वेश्चन ये बन सकता है सबसे पहले कि ये डुगोंग रिजर्व है कहाँ? ये है पाक बे, तमिलनाडु, ठीक है। और रिसेंटली IUCN की एक वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुई 2025 में। तो उस कांग्रेस में, उस कॉन्फ्रेंस के तहत उन्होंने अनाउंस करा कि इंडिया का ये जो कंजर्वेशन है या फिर ये कंजर्वेशन रिजर्व है, इसने बहुत सही काम किया है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दिस species which is dugong. This recognition marks a crucial step in safeguarding one of the India's most endangered. See, as I told you, ऐसा नहीं है कि ये जो मरीन काव है, मरीन मैमल है, ये बहुत ज्यादा अबंडेंस में इंडिया में। मैंने बोला ना, IUCN ने खुद ही इसको एंडेंजर्ड लिस्ट में डाला है। एंडेंजर्ड वो सारी स्पीशीज हैं, बीट फ्लोरा फौना, एनिमल हो या फ्लावर्स हो, ट्रीज हो, प्लांट्स हो, जो कि अब एक्सटिंक्शन की कगार पे है। अगर इनको प्रिजर्व नहीं करा गया, अगर इन पे आपने क्लोज क्वार्टर्स नहीं रखे, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, जैसे डायनासोर हो गए, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो भाई तारीफ हुई इंडिया की और उनको ये दर्जा भी दिया गया। अब डुगोंग के बारे में ये डेटा बहुत जरूरी है। क्या भारत में हमेशा से डुगोंग है? नहीं, ये तो भारत का नेटिव तक नहीं है। भारत में सबसे पहले सितंबर 2022, मतलब आज से 3 साल पहले क्या स्टैब्लिश होता है दिस डुगोंग कंजर्व रिजर्व, और वो भी कहाँ? तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको स्टैब्लिश करा, किसके अंडर? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। इस स्लाइड में ना बहुत सारी डिटेल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत 1972 में एनवायरमेंट के बैलेंस का ध्यान रखते हुए और एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन का ध्यान रखते हुए एक इनिशिएटिव लेती है और लेकर आती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये कब आया था? 1972 में। इसके 3 साल, ठीक 1 साल बाद आया था प्रोजेक्ट टाइगर। ये क्वेश्चन एग्जाम में 10 बार पूछा गया है, मिनिमम 10 टाइम्स। कब आया था प्रोजेक्ट टाइगर? 1973 में। एंड टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, राइट। सो बेसिकली 1972 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके तहत भारत सरकार एक इनिशिएटिव लेती है कि भारत में जितनी भी फ्लोरा फोना है उनको हमें प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो एक एक्ट लाना उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसी एक्ट के तहत देयर आर मल्टीपल नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया, राइट। देयर आर आल्सो बायोस्फीयर रिजर्व्स, अगर आपने सुना होगा। हालांकि डिफरेंस होता है एरियाज का। बायोस्फीयर रिजर्व छोटा सा एरिया, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसमें मल्टीपल बायोस्फीयर रिजर्व्स है, फिर आता है नेशनल पार्क जिसका एरिया बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो जब एरिया बढ़ता चला जाता है तो रिस्ट्रिक्शन सरकार के और बढ़ जाते हैं। उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट, बाहर की जो सिविल लाइफ है या जो सिविल सोसाइटी है, उनका इंटरेक्शन इस तरीके के नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स या फिर इस तरीके के कंजर्वेशन रिजर्व से क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। भाई बाहर से आदमी आएगा अंदर तो डेफिनेटली ये लोग भी क्या हो जाएंगे? डिस्कम्फर्ट में आ जाएंगे, इनकी जो इकोलॉजी है वो डिसबैलेंस हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके की बहुत चीजें ध्यान में रखी गई और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। द डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व स्पैन्स एन एरिया, सी ये जो तमिलनाडु का रिजर्व है, इसका एरिया आप इसको करीब 4.5 स्क्वायर किलोमीटर कंसिडर कर सकते हैं, लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर ही, ठीक है। और ये कहाँ पे है? पूरा नदन पार्क गे में ये फैला हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल है, कभी आपको मौका मिले। सो डुगोंग्स आर टिपिकली फाउंड इन, अच्छा क्या ये बहुत डेप्थ में पाए जाते हैं, बहुत ही डीप वाटर में क्या ये पाए जाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक हल्के से वार्म या लूक वार्म, गुनगुना जिसको हम बोलते हैं, बिकॉज ये ज्यादा ठंडे और ज्यादा डीप पानी में जाते ही नहीं है, दे डोंट लाइक इट। इनका जो हैबिटेट है वो यही है, वार्म, लूक वार्म वाटर, शैलो मतलब वेरी लेस डीप, और काम कोस्टल वाटर्स, क्योंकि आपको पता है जो कोस्ट एरियाज हैं वो भी बहुत शैलो होते हैं, ठीक है, नमक बहुत होता है, नहीं। सो और सी ग्रास बेड आप देख सकते हैं, ये जो नीचे है इसको सी ग्रास बेड बोलते हैं। तो इसको कुछ ऐसे ही रहना पसंद है और यहीं पे क्या कर सकता है? ब्रीड कर सकता है, यहीं पे इसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करा जा सकता है। इन इंडिया दे इनहेबिट, क्या इंडिया में सिर्फ ये पार्क बे में है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई नो इसका जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो पार्क बे में है, बट इसके अलावा ये पाए जाते हैं गल्फ ऑफ मन्नार में, गल्फ ऑफ कच्छ में भी, गुजरात की तरफ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की भी तरफ। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अंडमान एंड निकोबार में सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है व्हेन इट कम्स टू एनी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया।
एनी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट। तभी देखना जब भी पर्यटक या आप कभी भी अंडमान एंड निकोबार घूमने जाएंगे, you'll be very close towards the nation, nature, you'll be very happy. So बहुत ज्यादा कंजर्वेशन किया जाता है कुछ इन एरियाज में भारत में, ठीक है। सो आई थिंक दिस डेटा इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व गेट्स IUCN recognition. All right, so keep this data on mind. With that, I'm ending the class, but I need you people to keep few things in mind. Okay, this is very important. Whenever you're targeting current affairs, you need to target certain areas. जिसका पूरा एक extract करके we make this compilation. आपको international news cover करनी है, ठीक है, जैसे हमने जीलोंग ट्रीटी की आज बात कही थी, राइट। आपको नेशनल न्यूज कवर करनी है, इंडिया का कोई पर्टिकुलर इनिशिएटिव, या इंडिया ने, जैसे नेशनल न्यूज है कि इंडिया ने 2 भीष्म क्यूब्स किसे दी, मॉलडीव्स को दी। फिर स्टेट न्यूज, किस तरीके से तमिलनाडु ने अपोज किया है NEP को और SCP लेकर आया है, किस तरीके से गुजरात में सबसे ज्यादा रूफटॉप इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट या इंस्टॉलेशंस रूफटॉप हासिल किए हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ। उसके बाद आता है आपका स्पोर्ट्स का सेक्शन विच वी ऑलरेडी कवर्ड, राइट। फिर देन वेरी इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका नासा, इसरो, ठीक है, सब कुछ कवर हो जाएगा। देन डिफेंस, CA, करंट अफेयर, डिफेंस की एक्सरसाइज, डिफेंस DRDO से रिलेटेड जितना भी डेटा है। दो आई डिडंट कवर दिस इन दिस क्लास, यू वेरी वेल नो द रीजन, बिकॉज इससे पहले जो करंट अफेयर की क्लास आई थी उसमें हमने बेस्ट और आई कैन से द टॉप 50 डिफेंस करंट अफेयर ही डिस्कस करे थे, तो वो अलग से आपको गो थ्रू जरूर करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो इसके अलावा आपको अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जैसे कि आज हमने पढ़ा भी कि किसको मिला रेमन मैग्सेसे अवार्ड, राइट, किसको मिला दादा साहब फाल्के अवार्ड, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज कि ओजोन डे कब सेलिब्रेट करा जाता है, हर मंथ के आपको इंपॉर्टेंट डेज फॉलो करने होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज, और फिर उनकी थीम उतनी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा आपको बेसिकली इंडेक्स भी क्रॉस चेक करने हैं। सो सी अगर आप इस तरीके से करंट अफेयर तैयार करते हैं इस तरीके से, तो शायद ही किसी एग्जाम में कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन आप टारगेट ना कर पाए। बट क्या इन्हें पढ़ना इनफ होगा? नहीं। अभी हमने सिर्फ लास्ट 4 मंथ्स के करंट अफेयर डिस्कस करे हैं, और जब आप हर महीने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एक्सट्रैक्ट करते हैं न्यूज़पेपर से या कुछ अच्छी इस तरीके की क्लासेस से, तो वो बहुत ज्यादा पाइल अप हो जाएगा एग्जाम तक, राइट। सो व्हाट नीड्स टू बी डन, इससे भी ज्यादा जरूरी है रिविजन। आपको हर वीक एक टारगेट सेट करना होगा कि जितने भी करंट अफेयर मैंने पढ़े हैं वो मैं रिवाइज कर लूँ, और विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज पुट पिक्चर्स फॉर यू पीपल, राइट। सो आप भी एग्जाम में जब तैयारी करें, सो सिर्फ इन्हें रीड करके जाना इज नॉट इनफ, यू हैव टू रिवाइज देम एज वेल, यू हैव टू सी द पिक्चर्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर करंट अफेयर, और फिर एग्जाम में आप 90 to 95% करंट अफेयर इजिली टारगेट कर सकते हैं। So this much for today's class. I wish you all the luck and take care. Jai Hind.